ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਬਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਅਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਪਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਪਾਈ ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤ ਗਵਾਈ।
गुरमुख होवै सो नाए राचै, साचै रहिया समाई है। गुर ते ज्ञान नाम रतन पाया, मनसा मार मन माहे समाया। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। अंतर प्यार भगति राता, सहज मते बण आई है। दुख निवारण गुर ते जाता, आप मिलिया जग जीवन दाता। जिसनो लाए सोई बूझै, भो परम भरम शरीर हो जाई है। आपे गुरमुख आपे देवै, सच्चै शब्द सतगुर सेवै। जरा जम तिस जोहे न साकै, साचे स्यों बण आई है। आपे गुरमुख आपे देवै, सच्चै शब्द सतगुर सेवै। जरा जम तिस जोहे न साकै, साचे स्यों बण आई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी, गुरु रूप गुरु सवारी खालसा साध संगत जीओ। आप जी बड़ियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, तिस जीवड़ अबर न कोए, धुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। धुरों जो दरगाहों बख्शिश कीती, सतगुरां दी पावन बाणी दे श्री आसा जी की वार दे आप जी ने कीर्तन श्रवण कीते हैं। सवाओ गुरु सवारियो समा है, जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰੂ ਸੋਲ੍ਹੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੈਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 1044 ਅੰਕ 'ਤੇ। ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੇ ਪਾਈ, ਮਨ ਮੁਖ ਭੂਲੇ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆਪ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤਪੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
जे राज भाग प्राप्त हो जाते हैं, जे राज भाग भोगदियां होइयां चंगे कर्म करे, जनता नूं सुख देवे, सहूलत देवे, फिर तां गुरु सवारियो वो फिर उनका राज भाग कीता होया सफला हो जाता है। पर जे जनता नूं दुखी देवे ना, दुखी करे, फिर बाकी वो नरकां दे अधिकारी बनते हैं। अजोके समय के हालात इहो ਜਿਹੇ हो चुके ने। देखो कल रात जिहड़ी रात लंघी है, बरखा पई है, मींह पिया, हालांकि मींह की लोड़ है, पर आपां मींह दे विच अपने घरां दे विच बैठे हुए हाँ, रजाइयां दा निघ माण रहे हैं। ते दिल्ली की धरती दे जिहड़े साडे किसान वीर बैठे हुए ने, साडे बजुर्ग बैठे हुए ने, उत्थे गुरु सरे कोई छत नहीं है, आसमान की छत थल्ले बैठे हुए ने। ते मौके की सरकार नूं देखना चाहिए है कि इन्नी अत दी सर्दी ठंड दे विच जिहड़े उत्थे लोग बैठे ने, वो एवें नहीं बैठे अपने हक लैण वास्ते बैठे हैं। उन्हां दा हक उन्हां नूं देना चाहिए है। देखो घर घर नहीं शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह जैसे राज जमने ने। महाराजा रणजीत सिंह के समय की गाथा है, कहते ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी विचरते हुए जा रहे ने, एक माई आई जिस माई का तवा टुटिया होया सी। तवा टुटिया ते माई जदों निता प्रति रोटी पकाउंदी है, टुटे हुए तवे उत्ते रोटी जिहड़ी गोल नहीं बन, चंगी तरह नहीं बनती है। ते कुदरती तौर पर महाराजा रणजीत सिंह उस नगर विच आए, कोलों दी लंघे ने, ते माई नूं पता लग्या कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी इत्थों दी लंघ रहे ने, आ फलाने नगर च आउणा है। ते माई गुरु सवरे उस समय तवा हाथ विच पकड़िया, ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत जिथे बैठे हुए सन, सभा सजी है, लोग उन्हां दी हजूरी विच बैठे ने। ते माई ने की कीता, जदों वो तवा चुक के ना शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह दे पैरां नूं चरणां नूं लाण लग पे। जदों पैरां नूं ला रही है ते महाराज नूं सजदा कीता, ते महाराज पुछदा कि बीबा तू माई ये की कर रही है। ते अगों माई ने उत्तर देना कीता, कहन लगी महाराज जी, शेरे पंजाब जी, मैं ये सुनना कीता है कि लोहे नूं पारस नाल लाइए ते लोहा सोना बन जाता है, ते जिहड़े तुहाडे पैरां नाल आके लग जाण ते वो सोना बन सकदे ने। मेरा तवा टुटिया होया है ते मेरा तवा भी सोने का बन सकता है। इन्नी भावना हुंदी सी राजे महाराजिਆਂ प्रति। जो महाराज ने देखिया कि इन्ना सन्मान, इन्ना वडियाई, तो उदों गुरु साहिब उस माई दियां सारियां लोड़ां पूरीआं कर दित्तियां। घर में 36 प्रकार के पकवान आ गए ने। हुण जिहड़े अपने किसान वीर बेचारे बैठे हुए ने इन्नी अत की सर्दी दे विच, वो किसी सरकार पासों नहीं मंग रहे कि सानू आ देना करो, वो अपने हक मंग रहे ने। जिहड़ी जमीन है, जमीन के मालक वो ने, फसल आप उगाउंदे ने, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, जिहड़ा उन्हां दा हक है, बनदा हक सरकार नूं देना चाहिए है। देखो जी, एक पासे सारी जनता इकट्ठी हो जाए, सारे सूबियां दे किसान इकट्ठे हो जाण, मजदूर भी एकत्र हो जाण, किसान मजदूर बैठे हुए ने, ते जदों एक पासे प्रजा होवे, एक पासे राजा होवे ना, ते राजे नूं फिर प्रजा की गल मननी चाहिए है कि साडी प्रजा मैनूं कह रही, जे प्रजा सुखी है तो मैं सुखी हाँ, जे प्रजा दुखी है फिर मैं दुखी हाँ। पर कारण की है
क्योंकि अंदर हंकार है, होमै होण करके ते इस करके वो गल मनण लई तैयार नहीं हो रहे, कानून जिहड़े वापस नहीं लै रहे हैं। सतगुरु महाराज के चरणों में आपां बेनतियां करिए, जिथे भी गुरु नानक लेवा सिख बैठे ने। ये नहीं कि देखो हुण बार्डर संघू बार्डर उत्ते जां होर बार्डरां उत्ते, ये नहीं केवल सिख ही बैठे ने उत्थे, उत्थे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हरेक धर्म के हरेक मजहब के लोग आके बैठे हुए ने, जिहड़े देखते हैं कि भाई इन्हां दे हक जिहड़े ने इन्हां नूं मिलने चाहिए हैं। आपां एक रात भी आपां अपने घरों बाहर नहीं कढ़ सकते, आसमान की छत थल्ले नहीं सो सकते। किन्ने दिन हो गए ने। इस करके गुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती करिए कि सच्चे पातशाह महाराज किरपा करन, इहो जिहे लोकां नूं समर्थ बख्शिश करन। जिहड़ी धरती ते अज साडे किसान वीर मजदूर वीर बैठे ने, उसे ही दिल्ली की धरती ते किसी समय साडे जथेदार बाबा बघेल सिंह जी बैठे सन, जथेदार बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया बैठे सी, जस्सा सिंह रामगढ़िया बैठे सन, ते बड़े बड़े जरनैल अपनियां फौजां लैके बैठे सी। जिथे दिल्ली की धरती 30 हजारी कोट बनया हो, जिथे कचहरी है, असल में गुरु सवारिओ वो कचहरी इस तरह नहीं, एवं नाम नहीं रख दिता गया। उत्थे बाबा बघेल सिंह जी ने 30 हजारी फौजां सन नाल, सिखां दी विरासत है वो। ते सतगुरु महाराज किरपा करन, आपां अरदास में चाहे आपां घरां विच बैठे, चाहे गुरु घरां बैठे, किसी भी धर्म नाल आपां संबंधित ने, आपां सतगुर के चरणों च बेनती करी, सच्चे पातशाह जिहड़े साडे किसान वीर ने ना, उन्हां दा बनदा हक पातशाह जी दिवाणा करो, उन्हां दे अंग संग वरतना, चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां, ये साडा सारियां दा फर्ज बनदा है। अज आपां घरां विच रोटी खा रहे हैं, साडे बच्चे खा रहे हैं, वो तां खा रहे ने जे किसान ने खेत विच मेहनत कीती है, फसल उगाई है। जे किसान नहीं फिर रोटी नहीं घर विच। एक गल याद रखियो, सरोह विचार गुरु पातशाह महाराज कृपा करते ने, कहते होमै माया बिचे पाई। उस वाहिगुरु ने संसार बना के, जीव का वजूद बना के, ते बिचे होमै पा दिती, बिचे माया का प्रभाव पा दिता। ते गुरु पातशाह भी कहते ने, भगत कबीर भगत रविदास साहिबां जी नूं पुछो, भगत जी कहते ने, माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै, दोरियो फिरत है, जब कछ पावै तब गर्भ करत है, माया गई तब रोबन लगत है। जो कुछ प्राप्त कर लैंदा गुरु सवारिओ, फिर हंकार करता, राज भाग मिल जाण ना, वडियाई मिल जावे, फिर मनुख हंकार करदा है। जदों राज भाग चले जाते हैं फिर जनता याद आती है, ये सच है। अज राज भाग कुर्सी कोल है ते जनता नूं टिच समझते ने, जदों गुरु सरे कुर्सी चली जानी है तो उदों फिर जनता याद आनी है कि असी गलतियां अपनी याद आनी कि असी आ गलतियां कीतियां ने, तो उदों पछताउंदे ने, फिर पछताण का कोई फायदा नहीं हुंदा। तो सतगुरु कहते ने, माया गई तब रोबन लगत। जो माया तो आंदी है खुशी मनाउंदा है, जब माया चली जाती है तो उदों फिर जीव कहते रोंदा है, कुरलाउंदा है। तो इस तरह ये वाहिगुरु ने कहते ये माया भी आप पैदा की है, होम है हंगता ममता इत्यादक, ये सब कुछ आप ही परमात्मा की खेड है। मनमुख भूले, मनमुख लोग इस माया विच गलतान होके, होमै विच खचत होके भुल गए। उन्होंने अपनी पत गवाई, अपनी पत इज्जत नूं गवा लिया। जिहड़े मनमुख ने वो तां सतगुरु कहते नानक मनमुखां नाल टुट्टी भली। मनमुखां नाल कहंदे जिहड़ी तोड़नी, दोस्ती तोड़नी वो चंगी गल है।
ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਨਾਏ ਰਾਚੈ, ਸਾਚੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਏ ਰਾਚੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਚੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲਈ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਖੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵਿਚਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਦਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੰਘਿਆ। ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਣਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਖੋਤਾ ਹੈ। ਖਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਪਰ ਹੈ ਖੋਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੋਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਮੈਂ ਹੀ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੋਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਸ ਖੋਤੇ ਜੈਸੀ ਆ, ਖੋਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਣ ਸਜੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ,
फिर साडा गुरु कहंदा सिक्खा पर नारी धी भैन पछाणै। चार करैतां तो बचना, जिहड़े बज्जर करैतां ने, इह तो आपां बचा करना है। सच दा साथ देना है, सच लई अपनी जान देण लई तैयार हो जाना। ये सतगुरू ने सिखाया है। तो जे तो आपां इन्हां उत्ते पहरा दिंदे आ, फिर सतगुरू दीयां सानूं खुशियां मिलणगीਆਂ। पर जे आप पहरा नहीं दे रहे, फिर साडी हालत मनमुखां जैसी है कि भीख दिखावै जगत को, लोगन को बस कीन, अंत काल काटी कटियो, बास नरक मो लीन। तो इत्थे सतगुरू उन्हां दी गल करदे, गुरमुखां दी, जिहड़े सचियार सिख बैठे सतगुर पास, उन्हां दी गल कर रहे। गुरमुख होवै सो नाए राचै, जिहड़े गुरु दे सन्मुख होण, गुरु वाले होण, कहंदे ओ नाम विच राचै तदाकार हुंदे ने। साचै रहिया समाई है, सच्चे वाहिगुरू दे विच ही ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। गुरु सानू ज्ञान देने वाला है। आप सतगुर के बचन पढ़ते हैं ना कि गुरु पातशाह कहते ने, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदे आ गुर बिन घोर अंधार। गुरु जिहड़ा सानू घुप हनेरे नूं दूर करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। इस करके जिहड़ा ज्ञान है ये गुरु पातशाह पासों मिलता है। नाम रतन पाया, नाम की एक रतन की न्याई है। पहला भी दास ने बेनती की है, जिहड़े संसारी रतन ने, हीरे ने, पन्ने ने, जवाहरात ने, सोना चांदी है, इन्हां रत्नां की कीमत पै जाती है, इन्हां दा मुल है। पर नाम का जिहड़ा गुरु सवारे मुल कोई नहीं है। नाम एक रतना रतन पदार्थ वो सागर भरिया राम। नाम रतन एक ऐसा है, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। नाम रतन एक ऐसा है, गुर सागर रतनी भरपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे। गुरु सागर है, समुंदर है, रतन नका नक भरिया होया। सिख की ने जिहड़े कहंदे वो हंसां दी न्याई हन। हंस मान सरोवर ते रहिंदे ने ना, हंस चुब्भी मारदे ने। पता है कि इहदे विच साडी खुराक है, इहदे विच साडी खुराक है, साडी मोती खुराक इन्हां दी। ते इसे तरह गुरसिख जिहड़े हंस ने ना, वो जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन बाणी नूं पढ़दे, नित दा नियम निभांदे हन, ते बाणी भी जिहड़ा अपना मन खबो लैना, मन बिल्कुल केंद्रित कर लेना, ये गुरु सर चुब्भी मारन की न्याई है। जिमें हंस जिहड़े मर जीवड़े बन जाते हैं, उन्होंने पता है कि सरोवर में चुब्भी मारी सानू इत्थे खुराक मिलेगी। तो गुरसिखां नूं पता कि सतगुर की बाणी पढ़ांगे ना, सतगुर की बाणी पढ़ के सानू आत्मा की खुराक प्राप्त होगी। तन की भुख तो जिहड़ी साडी है वो भोजन प्रशादे नाल, रोटी नाल साडी मुक जाएगी। ते आत्मा की खुराक, आत्मा नूं बलवान करन दे लई सानू अपने मन नूं गुर शब्द विच खवाउणा पवेगा। जो अपने मन नूं गुर शब्द विच खवो लवांगे, फिर साडा जिहड़ी साडी आत्मा बलवान होवेगी। साडा मन जिहड़ा इधर उधर दौड़िया भज्जिया फिरदा ना, ये मन एक थां ते केंद्रित हो जाएगा, मन टिक जाएगा। पर गल उदों बनेगी जदों आपां अभ्यास करांगे, नितनेम करदे हां, नितनेम दीयां बाणीआं कल्ली कल्ली आपां गुरु सर एक एक पौड़ी नूं बाच के पढ़ना करिए। आनंद साहिब दी पावन बाणी पढ़दे हां, आनंद साहिब दी पावन बाणी दे विच 40 पौड़ियां ने, ते 40 पौड़ियां दे सतगुर जी साडे मुख सिद्धियां चपेड़ा मारना कीतियां ने।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਹੀ, ਮਾਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਜਨਮ ਰਤਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਉਹ ਭਲੇ ਬਣਜਾਰੇ ਬਣ, ਚੰਗੇ ਬਣਜਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ, ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਚੇ ਪੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਕ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸਰਵਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਇਆ। ਮਨਸਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਜੀਵ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਧਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨੋਂ ਭੱਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
देखते जरूर है एक दूजे वाल, पर पता नहीं लग कह की रहे ने। जिन्होंने तो हुण भाषा का ज्ञान है, पता है कि आ महाराष्ट्र की बोली ये आख्या, ये इस तरह बोल रहे हैं, हूँ तुम समझ आ जाएगी। जिन्होंने समझ नहीं है वो सुन के चुप कर गूंगिया वांग सुनता रहे की कह रहे हैं, कोई किसी की सहायता लवेगा ये कह की रहे हैं। है ना, गुरबाणी नूं समझण लई सानू गुरबाणी दे अर्थां दा भाव अर्थां दा पता होना चाहिए। फिर साड़ी जिवें आपां आम मनुख नाल गल्लां करदा ना, ते सिख फिर गुरु नाल गल्लां करेगा। जदों जपजी साहिब दी पावन बाणी पढ़ांगे ना, जपजी साहिब सतगुरु आखदे ने किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सवाल है सतगुरु कीता कि किवें सचियार किवें होई है, कूड़ दी जिहड़ी पाल कंध है किवें टुट सकदी है, अर्थ ही बनते ने। फिर सतगुरु हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया, जदों कहंदे उहदे हुक्म भी चलांगे, उहदे हुक्म की पालना करांगे, फिर इस तरह ये कूड़ की कंध टुट सकती है। जो हम अर्थ बाचांगे फिर पता लगेगा। तो ज्यों ज्यों आपां अर्थ समझते जावांगे, अर्थां दे बाणी पढ़ते जावांगे, त्यों त्यों साडे अंदर एक अनुभव प्रकाश होवेगा। वो अनुभव प्रकाश ऐसा होवेगा जिथे भी आपां बैठे होइए, किते भी बैठ जाइए, जाके बाणी पढ़नी शुरू कर दी, सतगुर की बाणी सुनन लग जाइए, तो साडे अंदर गुरु सारे फिर वखरा अनुभव हर समय वखरा ही प्रतीत होवेगा। तो सतगुरु कहते ने इस तरह तू नाम बाणी का अभ्यास करना है, अपने मन दियां मनसा सारियां मार लैनियां, मन माहे समाया, ते अपने मन नूं उस परमात्मा दे नाम विच समाया भेद कर लेना, लीन कर लेना है। भाव उहदे विच ही अपने मन नूं जोड़ लेना है। आपे खेल करे सब करता, आपे दे बुझाई है। पर नाल ही सतगुरु अगली पंक्ति जी बख्शिश करते हैं, कहते जीव दे बस की गल नहीं है, ये वाहिगुरु ने एक खेड रचाई हुई है। एक ना पासों परमात्मा नाम जपा रहा, बाणी पढ़ा रहा, चंगे कर्म करा रहा, धर्म के निमित्त कर्म करा रहा है, लोड़वंदां की सहायता करवा रहा, लंगर इत्यादि लवा रहा है। एक ऐसे ने जिहड़े उन्हां वल देख के दुखी हो रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। हुण देखो दिल्ली की धरती ते जिथे साडे किसान वीर बैठे हुए ने, उत्थे किन्ने प्रकार के लंगर लग गए ने। ठंड की रुत है, इन्ना दुख की घड़ी है, ये समा बड़ा औखा है, पर गुरु सारे गुरु के सिंघां ने ते उत्थे बदामां दे लंगर भी ला दे, काजू बदाम दे लंगर भी लाए ने, होर अनेकां प्रकार के लंगर लगे ने। कंबल ठंड की रुत है तो लोगों ने कंबल उत्थे भेटा कीते कि नहीं तुसीं आ कंबल लैना करो, वधिया कंबल। हरेक प्रकार दीयां सहूलतां ने। जिथे गुरु नानक दे सिखां दा जिहड़ा फकर नाल सिर उच्चा हुंदा है, ते उत्थे गुरु सर जिहड़े जरवाणे ने, वो जरवाणे वो देख के सड़दे ने कि इन्ना पैसा ना कित्थों कित्थों ये माया कत्तर करदे ने, किस तरह इन्हां ये सारा प्रबंध चला रहे हैं। तो सतगुरु महाराज इत्थे बख्शिश करते हैं, कहते भाई एक ऐसे ने जिहड़े नाम जपदे बंदगी करते हैं, उस वाहिगुरु के गुणां नूं गायन करते, वो परमात्मा ने आप लाए हुए हैं। इकना नूं परमात्मा ने कुराए पाया होया है, जिन्हां नूं परमात्मा की बंदगी चंगी लगती, सतगुरु की बाणी उत्ते जिन्होंने विश्वास नहीं है, कोई धर्म दे ते कर्म नहीं करते हैं, कहते है सारी खेड परमात्मा की है। आपे खेल करे सब करता, करता वाहिगुरु आप ही खेडां खेड रहा है। आपे दे बुझाई है, जिहड़े उहनूं भाउंदे हन उहनां नूं फिर आप ही बुझाई जना दिंदा है कि ये सच है, तो वह सच दे सच उत्ते पहरा दे के वो सचियार बन जाते हैं। फिर मालक दे दर ते प्रवान हुंदे हन। आप ही मालक बख्शिश करता है,
सतगुर सेवे आप गवाए, मिल प्रीतम शब्द सुख पाए। गुरु पातशाह बख्शिश करते हैं, कहते भाई जे तू चाहता ना कि गुरु की मैं सेवना करनी, गुरु की सेवा करनी है, गुरु गुरु जपना, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है, कहते गुरु की टहल सेवा एवें नहीं हो सकती है। गुरु की टहल सेवा करन दे लई तैनू अपना आप गवाना पवेगा। अपना आप जो अपना आप गवा लवोगे, फिर उस मालक के गुणां का गहन कर गुरु गुरु जपोगे तो गुरु पातशाह के दर तो तैनू खुशियां खेड़े नसीब हो जाणगे। हुण अपना आप गवाना बड़ा औखा है, क्योंकि गल्लां करनियां सौखियां ने, उन्हां उत्ते अमल करना बड़ा औखा है। जे गुरु कृपा करे ना, फिर ही अपना आप गवाया जा सकता है। देखो हुण पोह दे दिन शुरू होने ने, 15 तरीक नूं पहला दिन है, पोह दी संगरांद है। ਜਿਹੜੇ कलगीधर पातशाह महाराज ਦੇ ਨਾਲ आनंदपुर साहिब ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक बचन करते सन सतगुरु कलगीधर पातशाह, ते अपनियां जानां कुर्बान कर लई सिंह अगे पहुँच जाते सी। एक एक सिंह तो जिहड़े ये जरबाने डरदे सी, एवें नहीं गुरु के सिंह सवा सवा लख ना कला कला जूझे आ, कलगीधर पातशाह थापड़ा सी। ते सतगुरु महाराज इत्थे बचन करते ने, कहते भाई जो सतगुरु नूं सेवना ना, अपना आप नहीं जनाया। उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने देखो किहो जिहा जीवन सी, कदे अपना आप नहीं जनाया उन्होंने। इन्ने कष्ट भी आए ने, दुख दीयां घड़ियां आईयां ने, ते कलगीधर पातशाह दे भाणे भी रजा विच भाणे नूं मिठा करके मन्निया कि गुरु दा हुक्म है। जे असी भुखे बैठे, साडा गुरु भुखा है। सवाल तां करदे कि गुरु कलगीधर पातशाह आप रज के भोजन छकदे ते सिंह भुखे रहिंदे, फिर तां सवाल हुंदा सी। ते सामणे सतगुरु कलगीधर पातशाह भुखे, साहिबजादे भुखे, जिन्हां नूं रोटी नहीं मिल रही है, प्रशादा नहीं मिल, जे वो भी नाल बैठे ने, मातावां भुखीआं। ते सतगुरु कहण लगे, ਸਿੰਘੋ जो मेरे कोल है ना, वो तुहाडे कोल है। तुहाडे ते मेरे विच कोई फर्क नहीं असीं रखिया। कि ये नहीं कि सतगुरु ने अपने लिए जिहड़ा आम तौर पर आपां देखदे ना, कोई संसार च विपता की घड़ी आ जावे ना, ते आपां पहलां अपने परिवार की सोचते हैं। मनुख की ऐसी तीव्र इच्छा है कि सालां बधी घर विच अनाज पिया होवे ना, लालच बस हो के मनुख कहंदा होर जमा कर लां मैं, 1 साल का मेरे को जमा, 2 साल का जमा कर ला, जो 2 साल का हो 3 साल का जमा कर लवां। इन्नी तीव्र इच्छा ये अंदर तृष्णा है। पर सतगुरु कलगीधर पातशाह ने कुछ छुपा के नहीं रखा। कहण लगे, ਸਿੰਘੋ जो मेरे कोल सी मैं वो वंड तुहाडे विच वंडिया, इकट्ठे होकर वंडिया सारिਆਂ ने। हुण तुसीं भी कई महीने हो गए ने, तुसीं भुखे भाणे ते मैं भी भुखा भाणा है। जे तुसीं इस तुहाडे बच्चे भी तराहे तराहे कर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे भी सामने साहिबजादे, देखो मैं कोई फर्क नहीं रखिया। जिमें मैनू मेरे साहिबजादे ने, वो तो कई गुणा वध तुसीं मैनू प्यारे हो। इन्ना प्यार सी सतगुरु दा।
ਹੁਣ भी सतगुरु इन्ना प्यार करते हैं, क्योंकि इतिहासक हवाले सानू प्राप्त होंदे ने। कलगीधर पातशाह जदों अपना सरबंस वार के सतगुरु दमदम साहिब धरती ते पहुंचे सी, माता जी आए ने दिल्ली की धरती तो, ते माता जी देखते ने कि मेरे लाल होणगे इत्थे, बाबा अजीत सिंह जी होणगे, बाबा जुझार सिंह, जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी होणगे, ते बड़े ध्यान नाल सतगुरु दी संगतां सिंघां वल देखदे ने। जो देखिया कि कितों भी लाल नज़र नहीं, चारे साहिबजादे किसी की झलक नहीं पई, ते माता जी ने सवाल कर लिया फिर उस समय, सतगुरु लाल कित्थे ने, साहिबजादे कित्थे ने? ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडे वाल हत्थ कीता, कहण लगे आही साडे लाल ने। सुंदर माता सुंदर कौर नूं आख्या आ मेरे लाल ने। भाई दया सिंह बैठे, भाई धर्म सिंह जैसे बैठे ने, होर सिंह बैठे ने, कहण लगे ये मेरे लाल ने। भाई तू चार लालां दी गल करदी है, मेरे तां हज़ारां पुत्तर ने। सानू पुत्रां नाल वध प्रेम कीता कलगीधर पातशाह ने। इतिहासक हवाला ये बोल ने कि इन पुत्रन के शीस पर बार दिए छुत चार, चार मुए तो क्या भया, जीवत कई हजार। साडे वाल हथ करके आख्या सी कि हजारां दी तादाद विच जीउंदे ने। जिस गुरु ने साडे लिए इन्ना कुछ कीता होवे, अज माफ करना, अज उसे गुरु नूं अज भुल गए आपां। उदों दे जरबाणी आखदे सी कि गैर मुसलमान कोई अपने सिर उत्ते दस्तार नहीं सजा सकता, पग नहीं बन सकता। उदों दे जरबाणी आखदे सी। ते गैर मुसलमान घोड़े उत्ते सवार नहीं हो सकता। ये गुरु पातशाह कहण लगे तुसी ये गल करदे, साडे सिख साडे सिंह घोड़ियां उत्ते भी सवार होणगे, साडे सिंह दस्तार सजाणगे। दस्तार तो बिना सिख काहदा गुरु सवारिया। साब सूत दस्तार सिरा, गुरबाणी विच भी बचन ने। पर माफ करना, जिथे सतगुरु ने सानू सरदारियां देना कीतियां ने ना, उत्थे अज असीं सतगुर तो बेमुख हो गए हैं। माफ़ करना, साडी हालत इहो जी हो गई। साडे बच्चे पत पुणे वाल जा रहे ने, अपने केसां दा कतल करवा रहे हैं। दस्तारां तां दूर दीयां गल दी गल है, सिर उत्ते जूड़ा ही खत्म हो गया। पुराने गुरसिख हुंदे सन, पुराने गुरसिख मावां, पुरातन मावां अपने बच्चे नूं दो गल्लां याद करांदे सन। दो गल्लां वो किहड़ियां सन? ऊड़ा ते जूड़ा। बच्चों नूं ऊड़ा ते जूड़ा याद कराना कि बच्चों ये याद रखना। पता है जो ऊड़ा आड़ा पैंती याद होवेगी, ये गुरमुखी अखर याद होणगे। ये गुरमुखी नाल जुड़नगे ते बाणी पढ़नगे। ते दस देना भाई घर विच फोटोआं लगियां होंदियां सन, तस्वीरां। भाई तारू सिंह खोपड़ी लाई जा रही है, मणी सिंह दा बंद बंद कट्टिया जा रहा है, किसी नूं आरे नाल चिरिया, जा भाई मती दाज दयाले जी नूं उबलदे देगे विच उबालिया जा रहा। इहो जिहियां तस्वीरां घर विच लगियां होंदियां सन। ते मावां दसदियां सी, पुत्तर आ भाई मनी सिंह ने, इन्हां नूं आख्या गया इस्लाम कबूल कर लवो। ये कहण लगे नहीं, मैनू अपना धर्म प्यारा। कहण लगे बंद बंद कट्टिया, जा कहण बंद बंद कट्टो, पर मैं अपना धर्म नहीं त्यागांगा। आ भाई तारू सिंह ने, पुत्रो देखो इन्हां ने अपने खोपड़ी लुहा ली, केस कतल नहीं होण दिते। ये मावां दसदियां हुंदियां सन। अज माफ करना, साडे बच्चियां नूं पुछ के देखो, कई बच्चे जिन्हां नूं पता वो तो उन्हां दी किरपा गुरु दी, कईयां नूं 10 गुरु पातशाह दा नाम ही नहीं पता, बाकी तो दूर दी गल है। 5 साडे तख्त ने, 5 तख्तां दे नाम दा पता नहीं। ते कईयां नूं पुछ लईए ना कि भाई साडे गुरु कौन ने,
तो कोई कहता साडे गुरु गुरु नानक पातशाह हैं, कोई कहता गुरु गोबिंद सिंह महाराज हैं। पर सतगुरु कह गए ने आग्या भई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये कलगीधर पातशाह महाराज ने बचन कीते ने हजूर साहब की धरती ते। जे बच्चियां नूं दसांगे ताइयों पता लगेगा ना। तो माफ़ करना, कई माता पिता की भी हालत इहो जी हो गई है जिन्होंने खुद नूं आप नूं पता नहीं है। फिल्मी एक्टरां दे आपां नाम पुछ लईए, बच्चे दस देणगे। टीवी सीरीयल चलते ने तो सीरीयल का नाम दस देणगे कि फलानी आ औरत है, इहदा नाम आ है, इहदा किरदार आ है, सब कुछ दस्सिया जावे। कोई देखते ने, मावां कोल बैठ के देखदियां ने। जे किसी नूं पुछ लईए कि भाई चार साहिबजादियां दी जिहड़ी पिक्चर पिछे आई सी, बड़ा उहदे राही लोकां नूं पता लग्गिया, इतिहास ते पता लग्गिया, वधिया उपराला कीता गया। पर जो सवाल पूछे गए कईयां पासों, कईयां ने दो दो तीन तीन बारी वो पिक्चर देखी है, कि कईयां नूं पुछया गया कि साहिबजादियां दे बाबत ते गुरु सवारिओ, उन्हां नूं विचों सवालां दे उत्तर नहीं पर मिले, उत्तर नहीं दे सके हो। इस करके अपने बच्चों नूं आपां गुरबाणी दे लड़ लाइए, गुर इतिहास नूं पढ़ीए, जिहड़ियां शहीद सिंघां दीयां साखियां ने वो आप पढ़ीए ते बच्चियां नूं सुणाइए, बच्चे नूं पढ़ाइए, ते केसां दी संभाल करिए, सोहणियां दस्तारां सीस उत्ते सजाइए। फिर गुरु सवारे सतगुरु महाराज सन खुशियां प्राप्त होणियां हन। ते पातशाह कहंदे ने वो जिहड़ा जो गुरु दी सतगुर दी किरपा, जो किरपा दे पात्र बनना, पहला अपना आप गवाना पवेगा। सतगुरु नूं सेवना, सतगुरु नूं चेते करना, सतगुरु की टहर सेवा करनी, आप अपना आप गवा के की जा सकती है। मिल प्रीतम शव सुख पाए, कहते फिर इस तरह अपना आप गवावांगे, प्रीतम नूं प्राणां तो प्यारे प्रीतम प्रभु नूं मिल जावांगे। ते इस गुरु के शब्द नाल जुड़ के जिंदगी दे सारे सुख ए जीव तैनूं प्राप्त हो जाणगे। अंतर प्यार भगती राता, सहज मते बण आई है। जिन्हां दे अंतर प्यार, हिरदे अंदर प्यार उत्पन्न हो गया गुरु के प्रति, सतगुर के नाम के प्रति, फिर वो भगती राता, प्रेमा भगती विच राता, वो तदाकार हो जाता, मस्त हो जाता है। फिर वो ज्यों ज्यों अभ्यास करता जाता है, सहज मते बण आई है। उन्हां दी जिहड़ी मत है ना, सहज वाली अवस्था में पहुँच जाती है। वो फिर इहो जी अवस्था जे पहुँच जाते हैं, उन्होंने फिर परमात्मा का नाम ही चंगा लगता है। वो संसार में विचरते ने, लोग भलाई दे काम करते, चंगे काम करते हैं, उन्होंने इस तरह फिर गुरु के दर तो मान सन्मान खुशियां प्राप्त होंदियां हन। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां